Hi guys, this is Sonam. Welcome back to my channel Enchanted Scholars Hub. This is our next session of English class. So we will do antonyms today. So let's start. Our first word is abhor. Abhor, and options are hate, love, detest and abominate. Right answer is love. Let's see, let's have other meanings. हेट मीन्स होता है किसी से डिसगाइज करना, मीन्स किसी से नफरत करना। डिटेस्ट का मतलब भी होता है अबोर करना, दैट इज़ हेट करना। एबोमिनेट का मतलब भी होता है अबोर करना, मीन्स हेट, डिटेस्ट एंड एबोमिनेट्स आर synonyms while love is antonym. So love is the answer. Love will be the answer of abhor. Let's have a sentence. I abhor to this type of insulting behavior. I abhor this type of insulting behavior. That mean मुझे इस तरीके के insulting behavior से सख्त नफरत है. I just hate it. I just detest it. Now next. Apathetic. Apathetic. Options are passionate, emotionless, impassive, indifferent. Right answer is passionate. We are doing here antonyms. So passionate will be the right answer for apathetic. Apathetic means indifferent, emotionless, impassive, who doesn't have any emotion, just pan and dead face. So impassive is also going to be apathetic. Impatient, same meaning. Emotionless, same meaning. So these are the synonyms. Let's have in a sentence. They people are apathetic and least or least taken to any quarrel. मीन्स जो वो लोग हैं, वो पीपल हैं, वो बहुत ही इनडिफरेंट है या इमोशनलेस हैं, वो लड़ाई झगड़े से दूर ही रहते हैं. नेक्स्ट वन, अप्रेंटिस. ऑप्शंस आर लर्नर, प्रोबेशनर, ट्रेनी और वेटरन. So apprentice, antonym will be the veteran. Apprentice, learner means भी होता है apprentice, professional means भी होता है apprentice, trainee means भी होता है apprentice. So ये तीनों क्या हैं, synonyms हैं, while veteran is antonym. So our answer will be the veteran. Antonym. Let's have in a sentence. Ramesh is an apprentice in this job. मीन्स रमेश इस जॉब के लिए अप्रेंटिस है, नोविस है, लर्नर है. मीन्स अभी वो सीख रहा है. ही इज़ लर्निंग. वाइल वेटरन इज हु इज़ एक्सपीरियंस, जिसको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, जिसको बहुत सारा अपने काम का नॉलेज हो, जो ऑलरेडी कई ईयर्स अपने काम को दे चुका हो. सो आंसर विल बी द वेटरन. नेक्स्ट वन, bemoan. Bemoan. Options are lament, rejoice, mourn, bewail. Right answer is rejoice. Lament means भी होता है bemoan, mourn means भी होता है bemoan, bewail means भी होता है bemoan. means दुख प्रकट करना, दुखी होना. while rejoice का means होता है to happy, टू पार्टी और टू खुशी
खुशियाँ सेलिब्रेट करना या फिर खुश होना, टू बी हैप्पी। He got his dearest job, so he got rejoiced and threw a party. मीन्स उसको अपनी मनपसंद जॉब मिल गई, सो वो बहुत खुश हुआ और उसने सबको एक पार्टी दी। सो द राइट आंसर विल बी रिजॉयस हियर। नेक्स्ट वन, bellicose. Bellicose is here and we have to find out the antonym of bellicose. Options are hostile, aggressive, peaceful, antagonist. Right answer will be peaceful. Peaceful is antonym of bellicose. Now let's see, bellicose means होता है जो बहुत ही झगड़ालू नेचर का हो, बहुत ही क्वेरलसम हो। हॉस्टाइल, अग्रेसिव एंड एंटागोनिस्ट, ये तीनों क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। बेलिकोज मीन्स भी होता है झगड़ालू, हॉस्टाइल मीन्स भी होता है, अग्रेसिव मीन्स भी जिसको बहुत गुस्सा है, एंटागोनिस्ट मीन्स भी जो बहुत झगड़ा करता हो। लेट्स इन अ सेंटेंस, Shalini has a bellicose nature, so no one wants to be her friend. शालिनी का जो नेचर है वो एक हॉस्टाइल है, अग्रेसिव नेचर का है, जिस वजह से कोई भी उससे फ्रेंडशिप करना नहीं चाहता। So the right answer will be, antonym will be peaceful for bellicose. Move to next. Derogatory. Derogatory. Options are damaging, dishonoring, complimentary, defamatory. Right answer will be complimentary. डेरोगेटरी का मतलब होता है किसी को बहुत ही नीचा दिखाना। डैमेजिंग का मतलब भी डेरोगेटरी, डिसऑनरिंग का मतलब भी किसी की इंसल्ट करना, डिफेमेटरी का मतलब भी होता है किसी की फेम को ख़त्म करना। सो कॉम्प्लीमेंट्री विल बी द एंटोनिम एंड ऑल थ्री आर हियर फॉर गोज टू सिनोनिम। So right answer will be complementary. That is antonym of derogatory. Next, husky. HUSKY, husky. Options are soft, croaky, guttural, gruff. Right answer is soft. Soft is antonym of husky. वाइल क्रोकी का मीन्स भी होता है, हस्की गटरल का मीन्स भी होता है, हस्की ग्रफ का मीन्स भी होता है। हस्की होता क्या है, हस्की ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल भी हमें अच्छी नहीं लगती हैं, जो हमें कानों को सुनने में बहुत ही बुरी लगती हैं, बहुत ही कड़वी लगती हैं। वाइल सॉफ्ट जो होती हैं वो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं। सो let's have in a sentence, Ravi's voice is so husky that we couldn't get enough time to spend with him. रवि की आवाज़ इतनी ज़्यादा हस्की थी कि हम उसकी आवाज़ की वजह से उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। हस्की मीन्स नॉट ओनली वॉइस, हस्की मीन्स बिहेवियर, और उसका जो बोलने का तरीका है वो भी हस्की को क्रोकी, गटरल और ग्रफ मीन्स जो हमें सुनने में जो हमें अच्छा ना लगे। सो ये तीनों क्या हैं, सिनोनिम हैं, और सॉफ्ट इज एंटोनिम। दैट विल बी द राइट आंसर, सॉफ्ट। नेक्स्ट वन, जियोपैर्डी। जियोपैर्डी। Options are danger, exposure, hazard, safe. Right answer is safe.
जियोपैडी का मीन्स होता है किसी चीज़ का खतरा, किसी चीज़ का जोखिम, इम्पेरिल। सो द डेंजर का मतलब भी होता है जियोपैडी, दैट इज़ खतरा। एक्सपोजर का मतलब भी होता है हम किसी एक्सपोजर, किसी खतरे में अगर हम अपने आप को एक्सपोज करें, उसका भी वही मतलब होता है हैज़ार्ड। हैज़ार्ड का मतलब भी होता है प्रॉब्लमेटिक, खतरा। सो सेफ मीन्स हमें जो खतरे से दूर रखे। सो राइट आंसर इज हियर सेफ। Safe is the antonym of jeopardy. In a sentence we can say to go there is full of jeopardy. You don't think of go there. मीन्स वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, जोखिम भरा है। सो प्लीज़ तुम वहाँ जाने के बारे में सोचना भी मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेफ्ट, CLEFT, क्लेफ्ट। Options are barbed, jagged, craggy, smooth. Right answer is smooth. क्लेफ्ट का मतलब होता है कोई भी पॉइंटेड और शार्प चीज़ जो नुकीला हो। बार्ब्ड का मतलब भी होता है नुकीला या शार्प। जैग्ड का मतलब भी होता है नुकीला या शार्प। क्रैगी का मतलब भी होता है रफ, नुकीला या शार्प। स्मूथ का मतलब होता है जो नुकीला ना हो, जो इजी हो। In a sentence we can say the edge of the chair was something half cleft, so we couldn't sit here properly. मीन्स जो चेयर थी, चेयर का जो एक एज था वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ क्लेफ्ट एरिया था, जिस वजह से हम वहाँ पर ठीक से नहीं बैठ पाए। सो द राइट आंसर इज smooth. Smooth will be the antonym of cleft. So guys, that's all good for today. Please thanks for watching, and don't forget to like, subscribe and share this channel. See you all in next class with next topic. So till then, take care and bye bye.